मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ऑलराइट। तो Yes. लास्ट तो लेक्चर्स में हमने किया था 27 एंड 28 वर्स, राइट? तो उसमें हमने देखा था कि कैसे नारद मुनि ने अपनी मटेरियल बॉडी छोड़ के एक ट्रांसेंडेंटल बॉडी उनको मिल गई थी, राइट? और वो एकदम सरचार्ज हो गए थे। और बड़ी अच्छी एग्जांपल विष्णु प्रेषर प्रभु ने दी थी कि हाउ व्हेन यू डू द डिवोशनल सर्विस, यू आप में वो एनर्जी आ जाती है कहीं ना कहीं से, एंड यू डोंट इवन रियलाइज इट, राइट? स्पेशली ऑन सम स्पेशल ओकेजन्स लाइक जन्माष्टमी, राधाष्टमी एंड ऑल, राइट? तो ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस नारद मुनि के साथ भी हुआ, राइट? ही वॉज टोटली सरचार्ज्ड एज ही गॉट अ ट्रांसीडेंटल बॉडी। तो अब वो बता रहे हैं, अभी हम 29th और 30th दोनों एक साथ ही कर लेंगे। स्टार्ट विद 1.6.29। कल्पन्ता कल्प कल्पान्ता इदम् आदाय सयाने मभ्यस उदन्वतः शिष्यरो अनु पुराणं विवसे नातर अहम विभोः। At the end of the millennium, when the personality of Godhead, Lord Narayan, lay down within the water of devastation, Brahma began to enter into him along with all creative elements, and I also entered through his breathing. Anyone wants to read the purport? Can I start with Prabhu? Yes, please. And excuse my audacity. We forgot to say Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We'll say that. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo ओम नमो Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नक्षत्रायेषु भद्रेषु बेटा पापा पापा can't hear. उत्तमा श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। All right. So we'll read the purport. Yes. Shall I start, Prabhu? Yes, please. Narada is known as the son of Brahma, as Lord Krishna is known as the son of Vasudeva. The personality of Godhead and his liberated devotee like Narada appeared in the material world by the same process. As it is said in the Bhagavad Gita, the birth and the activities of the Lord are all transcendental. Therefore, according to authorized opinion, the birth of the Narada as the son of Brahma is also a transcendental pastime. His appearance and disappearance are practically on the same level as that of the Lord. The Lord and his devotees are therefore simultaneously one and different as spiritual entities. They belong to the same category of transcendence. Hare Krishna. Thank you. We'll cover the next one as well, and we'll then cover both of them together. सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायदं शिष्कृशतः मारीचि मिश्रा ऋषया प्राणेभ्यो अहं न जज्ञिरे. After, I can't even pronounce this, 4,300,000,000 years, solar years, when actually it is 1000 sahasra yuga prayante. So it means when one yuga, chatur yuga is this is what is called, um, when 1000 yugs are done, then what happens after 1000 yugas, or these many solar years, when Brahma awoke to create again by the will of the Lord, all the rishis like Marichi, Angira, Atri and so on were created from the transcendental body of the Lord, and I also appeared along with them. Purport. मैं रीड करता हूँ। हाँ, Yes, please. आप रीड करो माता जी, कोई बात नहीं।
आप रीड कर लो प्रभु। हाँ हाँ ओके माताजी। The duration of the day in life of Brahma is 4.32 billion solar years. This is stated also in the Bhagavad Gita. So for this period, Brahmaji rests in Yog Nindra within the body of Garbhodaksha Vishnu, the generator of Brahma. Thus, after the sleeping period of Brahma, when there is again creation by the will of the Lord, who the agency of Brahma, all the great rishis again appear from different parts of the transcendental body, and Narada also appears. This means that Narada appears in the same transcendental body, just as a man awake from sleep in the same body. Sri Narada is eternally free to move in all parts of the transcendental and material creation of the Almighty. He appears and disappears in his own transcendental body, which is without distinction of body and soul, unlike conditional beings. Thank you, bro. All right. तो अभी ये ना थोड़ा सा टेक्निकल सा है कि ब्रह्मा के बेटे के रूप में वो दोबारा जन्म लिया उन्होंने। तो पहले वो क्या बोल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द मिलेनियम when the personality of Godhead Lord Narayan lay down within the water of devastation। इसका क्या मतलब है, किस की बात हो रही है ये पता है हमें? कौन लेटता है वाटर ऑफ डेवास्टेशन में? कौन सा पुरुष अवतार है लॉर्ड नारायण? कारणोदक्ष विष्णु। No, you are close. It's Garbhodaksha It's a Garbhodaksha Vishnu. I'll show you. उससे तभी मैंने ये दोनों इकट्ठे किए हैं कि इससे ना क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड दो बस मुझे, मैं ना वो चार्ट खोल लेता हूँ, उससे इजी हो जाता है। पहले खोल के रखना चाहिए था। Brahma began to enter into him along with all the creative elements and I also entered। अब जब क्रिएशन होती है ना, अब ये क्रिएशन की बात चल रही है, राइट? तो जब क्रिएशन होती है ना, तो क्रिएशन टाइम पे आप देखो ब्रह्मा जी कैसे क्रिएट हुए हैं। ये महाविष्णु हैं जिसको कारणोदक्ष विष्णु भी कहते हैं, जो मित्र प्रभु बोल रहे थे। तो इनकी श्वास से बहुत सारे ब्रह्मांड पैदा होते हैं, ठीक है? तो उस एक ब्रह्मांड को मैंने जूम इन किया यहाँ पे, वो एक ब्रह्मांड की ये है। अब ये है गर्भोदक समुद्र, इस समुद्र, तो इसके अंदर गर्भोदक्ष विष्णु लेटे हुए हैं और यहाँ से इनकी नाभि से ये सब क्रिएट हो रहा है। ये क्रिएशन है बेसिकली, राइट? तो नारद मुनि कौन थे? नारद मुनि ब्रह्मा जी के बेटे थे, ठीक है? और ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? 100 साल। अपने उसमें 100 साल है, बट अगर उनका दिन देखा जाए तो एक दिन उनका 1000 युग जितना है। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ज्यादा टेक्निकल अगर हो जाएगा तो मुझे बता देना, हम उतनी डिटेल में ही जाएंगे। अगर आपको लगेगा ज्यादा है तो विल स्टॉप। तो बेसिकली पॉइंट वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से निकले और ब्रह्मा जी के साथ में मैं परपुट भी खोल लेता हूँ ठीक है? अब जब वो मिलेनियम खत्म हुआ, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म हो गया। जब एक दिन खत्म हो जाता है तब वो योग निद्रा में चले जाते हैं, तो वो सोने का टाइम हो गया ब्रह्मा जी का। तो जब सोने का टाइम हो गया उनका, तब क्या होता है? कि पूरी डिवास्टेशन हो जाती है। कौन कौन से लोग खत्म हो जाते हैं? मैंने पहले बताया था ना, 4 तरह की एनहाइलेशन होती है। एक होती है एलिमेंटल, जैसे हम क्रिएट होते हैं चीजें और खत्म हो जाती हैं, राइट? एलिमेंटल। देन हमने वो बोला था पार्शियल एनहाइलेशन। ये बार बार आता रहेगा कंसेप्ट, तो अच्छा है हम अगर हमारा रिवाइज हो जाए तो। पार्शियल एनहाइलेशन में क्या होता है कि ये जितने भी लोग हैं ना, ये यहाँ से पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, पृथ्वी, ठीक है? पृथ्वी के बाद भूवर, स्वर्ग। तो यहाँ तक जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं वो एनहाइलेट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। कब खत्म होते हैं? जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म हो जाता है, ठीक है? और ये लोग तो पूरी तरह से डिवास्टेट हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। यहाँ स्वर्ग लोग में जितने 33 करोड़ देवी देवता हैं वो सब सब खत्म हो जाते हैं, और सिर्फ ये वाले लोग बचते हैं।
सत्यलोक, जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ब्रह्मा जी रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सारे ऋषि मुनि, चार कुमार, जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो ये वाले क्या होते हैं, ये वापस गर्भोदक्षाई विष्णु के अंदर चले जाते हैं, सो जाते हैं, उसको योग निद्रा। ये भगवान भी सो जाते हैं और ये सब भी सो जाते हैं। और इनमें से कुछ लोग, कुछ इनमें से भी खत्म हो जाते हैं। लोक नहीं खत्म होते, बट उसके अंदर जो ऋषि मुनि है वो खत्म हो जाते हैं। पर ब्रह्मा जी की लाइफ टाइम नहीं खत्म होती। कुछ कुछ ऋषि यहाँ पर हैं जिनकी लाइफ टाइम ब्रह्मा जितनी है। तो नेक्स्ट डे जब होता है, तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि, वो लिखा है ना उसमें कि ऐसे ही होता है कि जैसे तुम सुबह उठते हो वैसे ही वो भी नेक्स्ट डे हुआ। जब नेक्स्ट डे हुआ तो फिर से सारी क्रिएशन ब्रह्मा दोबारा करते हैं। ये वाली सारी क्रिएशन ब्रह्मा दोबारा करते हैं। तो जब सारी क्रिएशन दोबारा हुई और जब दोबारा सारे लिविंग बींग्स ब्रह्मा जी ने बनाए, तो उस टाइम पे नारद मुनि एक्चुअली अपीयर हुए। उस मिलेनियम में नारद मुनि किसके साथ अपीयर हुए, और अत्रि, पुलस्त्य, ये पूरी आगे डिस्क्रिप्शन है कि कौन कौन से 10 पुत्र हुए उनके, और कैसे कैसे हुए अपीयर वो। पहले तो अब ब्रह्मा जी का काम क्या है, प्रोजेनी क्रिएट करना। उनको बोला कि जाओ और जितने भी जिन जिन लोगों की इच्छा है इस मटेरियल वर्ल्ड में आने की, उनको आप भेजो यहाँ पे। तो उन्होंने भेजना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले किनको भेजा, चार कुमारों को। अब चार कुमार क्या थे, वो ज्ञानी थे, ठीक है, वो बालक ही रहे, वो बड़े ही नहीं हुए। उनको उन्होंने बोला कि हमें नहीं करना है, हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहना है, हमें प्रोजेनी क्रिएट नहीं करनी है, हमें शादी नहीं करनी। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि यार ऐसे कैसे, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें नहीं करनी है। तो जैसे ही उनको गुस्सा आया, उनके आईब्रोज में से रुद्र निकले, गुस्से से, शिव जी, राइट। तो रुद्र निकले और रुद्र ने बोला कि बताओ क्या करना है मुझे, पिताजी बताइए, आदेश दीजिए। उन्होंने उनको भी वही आदेश दिया कि जाओ जाके क्रिएशन करो। तो वो क्रिएशन वो करने लग गए। बहुत सारे रुद्रस हो गए, हर जगह पर हो गए। और फिर वो रुद्र क्योंकि उनके गुस्से से निकले थे, देवर इन मोड ऑफ इग्नोरेंस काइंड ऑफ। सो दे स्टार्ट, इंस्टेड ऑफ क्रिएशन, वो जो ब्रह्मा ने जितनी क्रिएट करी हुई थी, बड़ा फनी ये है थोड़ा ना, ये नेक्स्ट उसमें आएगा कैंटो में। तो वो उनको सबको डिस्ट्रॉय करने लग गए। तो ब्रह्मा ने बोला कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने, ब्रह्मा ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा करो, आप कैलाश पे जाओ और आप कुछ मत करो, आपका जब टाइम आएगा तब मैं आपको बुलाऊंगा। आपका टाइम कब आएगा, जब एनहाइलेट करना होगा, जब डिवास्टेट करना होगा, ठीक है, जब सृष्टि को खत्म करना होगा, तो तब आना। तो वो ठीक है। फिर ब्रह्मा ने कॉन्टेम्पलेट किया, बड़े आराम से मेडिटेशन करी, तब जाके नारद मुनि आए, जो कि उनके बेस्ट, वन ऑफ हिज बेस्ट सन्स, ठीक है। मारीची, अत्रि मुनि और काफी मुनि हुए उस टाइम, पर नारद मुनि जो थे वो सबसे बेस्ट थे। वाई? बिकॉज जो बाकी थे ना, मारीची, हमने परपोर्ट में देखा, मारीची और ये नेक्स्ट कौन कौन से हुए, ये मारीची, अंगीरी, अत्रि, ये सब क्या थे, यहाँ पे लिखा होगा, दीज ग्रेट ऋषिज, यहाँ पे लिखा होगा कहीं नाम से पता। ये क्या थे, हाँ, श्री नारदा इज एटर्नली, हाँ, बट ये जो उसमें ट्रांसलेशन में हाँ ट्रांसलेशन में है ना, हाँ ये रहे, वर क्रिएटेड फ्रॉम द ट्रांसलेशन, हाँ, वर क्रिएटेड फ्रॉम द ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ द लॉर्ड, राइट। ये सब ऋषि वहां से हुए, बट ये जो ऋषि थे ना, देवर नॉट, देवर इनटू कर्म कांड। ये ऋषि कर्म कांड करने के लिए थे। बट और जो चार कुमार थे, सनक, सनंदन, सनातन, वो क्या थे, वो ज्ञानी थे, उनको मटेरियल जगत से कुछ नहीं लेना था, तो वो ब्रह्म ज्योति की ओर चले गए। पर जो नारद मुनि थे, ना वो कर्मकांडी थे, ना वो ज्ञानी थे। अगर हमने उसकी डेफिनेशन देखी हो प्योर डिवोशनल सर्विस की, कई बार वो विष्णु प्रेषर प्रभु बोलते हैं ना, वो कौन सा है वो, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। अन्य, तुम्हारी प्योर डिवोशनल सर्विस क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई डिजायर नहीं हो, अनमोटिवेटेड, सिर्फ डिजायर है टू प्लीज कृष्णा। ज्ञान कर्म अनावृतम, ना ज्ञान की ना कर्म की, ना कर्म कांड करना इज गुड, ना ही ज्ञान। ज्ञान मार्ग से क्या होगा, एट मोस्ट यू कैन रीच इज ब्रह्म ज्योति, राइट। सो ज्ञान, और वो तो
जो नारद मुनि थे वो दोनों ही नहीं थे, ना वो ज्ञान मार्ग पे थे ना वो कर्म कर्म के मार्ग पे थे। वो किस मार्ग पे थे? सिर्फ भक्ति योगा के मार्ग पे। और जो भक्ति योगा के मार्ग पे होता है, ओनली दैट कैन अटेन द लॉर्ड। राइट। तो ये थोड़ी बैकग्राउंड सी मैंने इसमें बताई है ताकि हमें पता चल जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो वो दोबारा क्रिएट हुए। अब चलते हैं कि अब ये देखो कितना ये एडवेंचरस है ना, कि आई ऑल्सो एंटर थ्रू हिज ब्रीदिंग। अब सोचो मरने के बाद हमारा क्या हाल होता है। हम तो मर गए, चलो जी, किसी ने आके क्रिमेशन कर दिया और वो सब हो गया। बट ये देखो ट्रांसीडेंटल बॉडी मिलने के बाद द रियल एडवेंचर बिगिंस। राइट, ही कैन सी एवरीथिंग, यू कैन रिमेम्बर एवरीथिंग, यू कैन आई मीन डू व्हाट नॉट। राइट। तो उन्होंने देखा कि कैसे मैं जा रहा हूँ, गर्भोदक्षय के अंदर एंटर कर गया, ब्रह्मा भी एंटर कर गए साथ में। राइट। सो आई मीन हम यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। बट आफ्टर गेटिंग ट्रांसीडेंटल बॉडी, स्काई इज इवन नॉट द लिमिट। यू कैन इवन ये बाकी जो ऋषि मुनि है वो सिर्फ इस खंडे के अंदर रह सकते हैं। बट जो नारद मुनि है, ही कैन गो बियॉन्ड दिस। ये सारी लेयर्स से पार करके वो वैकुंठा में जा सकते हैं। यहाँ से ब्रह्म ज्योति है, ये ब्रह्म ज्योति है, और यहाँ पे वैकुंठा प्लैनेट्स हैं। ही कैन गो हियर। अब आगे जाके आएगा उसमें बोलते हैं कि ही इज अ स्पेसमैन। प्रभुपाद बोलते थे कि ही इज अ लिबरेटेड स्पेसमैन। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था, क्योंकि हाँ, ये नेक्स्ट वर्ष में था ना। सॉरी, इसी में था। ठीक है। तो उन्हों वो ये वाली लेयर्स, पृथ्वी जल वायु आकाश मिथ्या अहंकार, इस लेयर को कोई नहीं पार कर सकता है, सिर्फ नारद मुनि पार कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्योर डिवोशनल सर्विस करी है। जो प्योर डिवोशनल सर्विस कर सकता है वही इस चक्कर से बाहर निकल सकता है। राइट। तो तो चार तरह के लोग होते हैं। ठीक है। एक तो मृत्य, जैसे हम लोग पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं। राइट। दूसरे कौन से होते हैं? अमर। जो अमर होते हैं, बोलते हैं ना कि देवता अमर है। वो अमर एक्चुअली क्या होते हैं? जो स्वर्ग में होते हैं। बट वो अमर एज एज इट इज अमर ऐसे नहीं होते कि वो कभी मरेंगे नहीं, कि उनका ये होता है कि उनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है, कि वो हमें ऐसे लगता है कि वो अमर है। बट जैसे मैंने बोला कि जब डिवास्टेशन होती है तो ये स्वर्ग लोक वाले भी खत्म हो जाते हैं। फिर होते हैं चिरंजीवी। अब ये वाले जो लोग हैं, तपोलोक जनलोक महरलोक सत्यलोक ब्रह्मा जी, इवन ये चिरंजीवी में आते हैं कि इनकी जो लाइफ होती है वो इससे भी ज्यादा होती है। एंड जो एंड में जो फोर्थ कैटेगरी के जो लोग हैं वो हैं नित्य। नित्य मीन्स इटर्नल। तो जो ब्रह्मा जी आते हैं वो इसके सॉरी, जो नारद मुनि आते हैं वो नित्य की कैटेगरी में आते हैं। ही is eternal because he got a transcendental body। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि ब्रह्मा जी जो हैं वो तो जीव तत्व हैं, राइट, और नारद मुनि जो हैं वो क्या है? ट्रांसीडेंटल। ये कैसे हो सकता है? इसीलिए प्रभुपाद ने इसका जो परपोर्ट है वो यहाँ से स्टार्ट किया है, कि जैसे उन्होंने बोला कि जैसे नारद ब्रह्मा जी का पुत्र है, ऐसे लॉर्ड कृष्णा भी तो वसुदेव के पुत्र थे। तो जैसे कृष्ण वसुदेव क्या है? जीव तत्व। आई मीन एज अ पार्ट ऑफ लीला, दिस इज ऑल लीला। राइट। तो सेम प्रोसेस उन्होंने बताया, जैसे अपीयर कृष्णा हुए हैं सेम तरीके से नारद मुनि अपीयर हुए हैं लीला की फॉर्म में। ही इज गॉट अ ट्रांसीडेंटल बॉडी। मित्र प्रभु आपका एक क्वेश्चन भी था, इफ यू रिमेम्बर राइट, कुछ क्लासेस पहले आपने पूछा था कि जीव तत्व के ये ऐसे कैसे हो सकता है। सो दिस इज द आंसर, कि प्रभुपाद ने आंसर दिया है। मैंने कहा था कि आगे जाके ये आंसर आएगा। राइट। तो जैसे कृष्णा वासुदेव के उसमें अपीयर हुए हैं, ऐसे ही नारद मुनि जीव तत्व के उसमें अपीयर हुए हैं। बट इट इज जस्ट अ लीला। राइट। तो जैसा कि भगवत गीता में क्या कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एव यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को? कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरे कर्म क्या है? ट्रांसीडेंटल है, वो समझ से बाहर हैं, वो समझ में नहीं आएंगे हमें। राइट। पर जो इनको समझने की कोशिश करता है, नेति मामेति सो अर्जुना, ही विल कम बैक टू मी। राइट।
So therefore, according to authorized opinion, the birth of the Narad as a son of Brahma is also a transcendental pastime. ये क्या है? लीला है. ठीक है. उनकी appearance और disappearance are practically on the same level as that of Lord. Can you imagine? Narad Muni, same naam, roop, gun, leela, everything is at the same level as that of as that of Krishna, right? So हमें, और ये भगवान को, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान खुद भगवत गीता में बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय. क्या बोल रहे हैं वो? अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, he get same मद भावम, he get same nature as of me, right? तो नारद मुनि क्या कर रहे थे? Actually अंत काल में he was already chanting and doing all that stuff, right? So he got same भाव, यह प्रयाति स मद भावम, he got the same भाव, same nature as of him, and इसमें कोई संशय नहीं है. नास्ति अत्र संशय, राइट? तो अब हम उनकी गुण और उनके लीला देखेंगे नारद मुनि की इसमें, राइट? तो एक बार शिला प्रभुपाद से भी पूछा किसी ने. अब क्या है कि नारद मुनि तो हम अगर नारद मुनि को भी क्या बोलते हैं, क्योंकि उनकी सेम है, हिज सेम एज गॉड, राइट? ये लिखा है ना उन्होंने, हिज अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस आर प्रैक्टिकली ऑन द सेम लेवल एज दैट ऑफ द लॉर्ड. तो हमारा जो संप्रदाय है उसको क्या बोलते हैं? किसी को पता है? जो इस्कॉन का जो संप्रदाय है उसको माधवा गौड़िया, नो? गौड़िया माधव. हाँ, तो उसको स्टार्ट होता है ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय. तो हमारा 4 तरह के संप्रदाय हैं. ब्रह्मा से स्टार्ट हुआ है, एक चार कुमार से स्टार्ट हुआ है, एक लक्ष्मी जी से स्टार्ट हुआ है और एक शिव जी से स्टार्ट हुआ है, राइट? तो हम ये 4 बोनाफाइड संप्रदाय हैं. तो हमारा जो है वो ब्रह्मा जी का है. ब्रह्मा जी ने किसको दिया? नारद मुनि को. नारद मुनि ने आगे किसको दे रहे हैं नारद मुनि? व्यास मुनि को ना? व्यासदेव जी को. वही चैप्टर चल रहा है, राइट? कन्वर्सेशन बिटवीन नारद मुनि एंड व्यासदेव. तो नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया और आगे से वो आगे लीनियज चलती आ रही है, मध्वाचार्य एंड ऑल. तो ऐसे करते करते हम शिला प्रभुपाद और ऑल. तो शिला प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, जैसे ये अंत काले च मामेवा, अगर हम लास्ट टाइम पे कृष्णा को याद करेंगे तो हम कृष्ण लोग पहुंच जाएंगे, पर क्या अगर हम लास्ट टाइम में आपको याद करेंगे तो क्या तब भी हम पहुंच जाएंगे? ठीक है, गोलोक वृंदावन, तब भी हम कृष्णा के पास पहुंच जाएंगे. तो प्रभुपाद ने थोड़ा सोचा और उसके बाद उन्होंने आंसर दिया, यस यू विल रीच. तो अगर हम एंड टाइम पे अगर प्रभुपाद को भी याद करते हैं, नारद मुनि को भी याद करते हैं, अपने आचार्य में से किसी को भी याद करते हैं, दे विल टेक अस बैक होम, बैक टू गॉड हेड, राइट? सो दिस इज देयर पावर, राइट? तो वैसे ही नारद, अगर आप नारद का संधि विच्छेद करो, नर, नरा और दा मीन्स टू डिलीवर एंड नर मीन्स मनुष्य. मनुष्यों को डिलीवर करते हैं. क्या डिलीवर करते हैं? भगवान. ही डिलीवर्स भगवान टू अस, नारायण टू अस, राइट? जैसे यशोदा वाज यश एंड दा, गिविंग यश, गिविंग फेम टू अदर्स. सेम वे नारद मुनि इज गिविंग नारायण, ही इज डिलीवरिंग नारायण टू अस. ठीक है? तो नारद, अब अगर आप देखो कि भागवतम के फर्स्ट कैंटो से लेके 12th कैंटो तक सभी कैंटोस में नारद मुनि का रेफरेंस जरूर आएगा. जितने भी भक्त बने हैं, किसकी उससे बने हैं? नारद मुनि में ये पावर थी कि वो किसी को भी, प्रैक्टिकली किसी को भी भक्त बना सकते हैं. हमने लास्ट वर्ष में देखा था ना कि वो टच स्टोन को जैसे मरकरी के साथ मिक्स करते हैं, इसको, एक मेटल को, तो वो गोल्ड बन जाती है. सो दैट इज द पावर ऑफ नारद मुनि. वो जिसको चाहे उनकी वो जिसको चाहे भक्त बना सकते हैं. हमने देखा भी है ध्रुव महाराज जब उनकी सौतेली माता ने उनको बोला कि निकल जाओ, तुम अपना कोई ढूंढो, अगले अगले जन्म में तुम्हें कोई मेरे जैसी माँ मिलेगी, तब तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकोगे, अभी तुम इतने लकी नहीं हो. तो वो अपनी माँ के पास गया, उसने कहा मम्मा ऐसे बोला. तो वो बोल रही है, कहती हाँ बात तो ठीक कह रही है वो, तो तुम्हें तो करना चाहिए कुछ.
तुम्हें जाके भगवान से मांगना चाहिए। तो वो जाता है जंगल में, वो करने लगता है। तो वहां पर कौन आते हैं, नारद मुनि आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो यहाँ पे। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं उनसे। कहते क्या कर रहे हो यहाँ पे। कहते मुझे ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, तो मुझे अपने, उसके पापा कौन थे, उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पिताजी कौन थे, मनु। मनु, मनु कौन थे, ब्रह्मा के पिता, ब्रह्मा के बेटे मनु, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे अपने दादा परदादा से भी बड़ी किंगडम चाहिए। कहते क्योंकि मुझे यहाँ उन्होंने ये वाली, यहाँ पे मुझे गोद में बैठने से मना किया। तो नंदी बोले अच्छा ठीक है। कहते तो तुम ये चाहते हो कि तुम उत्तानपाद जो इस पूरे सृष्टि के राजा हैं, और मनु जो पूरा, जो सारा, जो पूरा यूनिवर्स देखते हैं, तुम उनको पोजीशन से हटा के उनकी पोजीशन पे बैठना चाहते हो। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं। तो वो टेस्ट कर रहे थे एज अ गुरु। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं करना है। कहते पर मुझे मुझे चाहिए। कहते तो कैसे मिलेगा। कहता वो मुझे नहीं पता, कृष्णा देखेंगे वो। तो इतना इम्प्रेस हुए उनके इस आंसर से नारद मुनि, देन ही टोल्ड हिम। हमारा क्या होता है, हमें हमें होता है कि अच्छा कृष्णा ये चाहिए, और ये ऐसे ऐसे चाहिए, ये हमें बताओ, हमारा फेथ है आप पे, पर जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। वो बच्चा 5 साल का क्या बोल रहा है कि कृष्णा देखेंगे, मेरी टेंशन नहीं है, वो मुझे चाहिए, इट्स अप टू हिम टू डिसाइड, राइट। वो डिक्टेट नहीं करना कि अच्छा ये ऐसे कर दो ऐसे कर दो, then वो उनकी हेडेक है। वैसे क्वेश्चन कर करके फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। उन्होंने बोला कि तुम बच्चे हो, तो तुम क्या हो गया, अगर बोल दिया ऐसा तो क्या हो गया, बच्चे ही तो हो तुम छोटे से। तो तब भी तो क्या हो गया। तो कहता नहीं मैं बड़ा हूँ। कहते अच्छा अगर बड़े हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि यार इसमें क्या हो गया। तो दोनों तरफ से वो उसको फंसा रहे थे। कहता मुझे नहीं पता, मुझे तो चाहिए। ही वॉज टोटली डिटर्मिन्ड, वो उसकी डिटर्मिनेशन चेक कर रहे थे। एंड देन फाइनली ही गेव हिम द मंत्र, ओके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ही सेड यू डू एंड यू विल गेट। एंड विद इन 6 months भगवान मिल गए उनको। तो जब मिले तो उन्होंने उत्तानपाद के पास गए नारद मुनि। उन्होंने बताया कि आपके बेटे को भगवान की प्राप्ति हो गई। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे शिष्य को हो गई। ही वॉज सो हम्बल। हमने देखा था ना वो पिछले वर्ष में कि एनवी एंड प्राइड से ही वॉज वे वे बियॉन्ड एनवी एंड प्राइड। दैट इज वाई ही वॉज एबल टू गेट आउट ऑफ दिस। हमने ये डिस्कस किया था ना कि ये जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर से 10 times थिकर है। तो ये जो मिथ्या अहंकार की जो लास्ट लेयर है, दैट इज, यू कैन इमेजिन कितनी थिक है ये फॉल्स ईगो की लेयर। सो तभी जितने बाकी ऋषि मुनि हैं वो यहाँ पर तो ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन इस अंडे से बाहर नहीं जा सकते। वेर एज नारद मुनि कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ से वैकुंठा लोग, वैकुंठा से आगे गोलोक का वृंदावन, वेर एवर ही वॉन्ट्स, बिकॉज ही डजेंट हैव दैट एनवी एंड प्राइड एंड ईगो, राइट। तो ध्रुव महाराज को किया ऐसे ही। ध्रुव महाराज तो फिर भी चलो 5 साल के थे। प्रहलाद महाराज इतने ईगर, नारदा टू डिलीवर द नरा, ही वाज सो ईगर दैट ही डिड नॉट इवन वेट फॉर प्रहलाद टू अपीयर उनकी वूम्ब में, व्हेन ही वाज इन हर मदर्स वूम्ब। तो तभी उन्होंने उनको क्या किया, भागवतम सुनानी शुरू कर दी। ये सबको हमको स्टोरी पता है, राइट, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो कयाधु उनकी वाइफ थी हिरण्यकश्यप की, राइट। तो उनके वो उनके पास आई क्योंकि देवता उनके पीछे पड़े हुए थे उनको मारने के लिए, कि ये तो हिरण्यकश्यप की वाइफ है। और हिरण्यकश्यप कहाँ गया हुआ था, तपस्या करने, राइट। तो वो उनको भागवत पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे आश्रम में रहो, मैं तुम्हें भागवत पढ़ाता हूँ। तो भागवत पढ़ते पढ़ते तो प्रहलाद महाराज ने वूम में ही भागवतम पढ़ी। और कितने साल पढ़ी, किसी को आइडिया। मतलब साल नहीं, 9 महीने पढ़ी होगी। नहीं, इट तो यादू ने क्या बोला कि अब बच्चा हो जाएगा 9 महीने में अगर, तो क्या होगा कि देवता आएंगे और उसको मार देंगे। पर मेरा पति तो गया हुआ है तपस्या करने। और हिरण्यकश्यप कितने साल की तपस्या कर रहा था, 10,000 साल। तो यादू ने बोला नारद मुनि को कि आप मुझे बेनेडिक्शन दो कि ये बच्चा 10,000 साल, मतलब जब तक हिरण्यकश्यप नहीं बाहर आता तब तक ये बच्चा बाहर ना आए। तो वो नहीं आया और वो 10,000 साल तक भागवतम सुनता गया, प्रहलाद महाराज। दैट इज वाई ही वॉज प्रहलाद महाराज, राइट। 10,000 साल तक उन्होंने भागवतम सुनी। और 10,000 साल हुए
तो वो बाहर आया, जो भी हुआ राइट, उसके बाद हमें सबको पता है। तो जब 10,000 साल के बाद बाहर आया, और हिरण्यकश्यप और जब नरसिंह आए थे, नरसिंह भगवान कब आए थे? जब प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, राइट। तो अगेन वन मोर लेसन कि 10,000 साल तपस्या करने के बाद इंजॉयमेंट कितनी देर किया हिरण्यकश्यप ने? 5 साल। देख रहे हो रेशियो प्रोपोर्शन, अगर आप देखो तो हमारी भी यही हालत है ना। कितना? 5 डेज, 5 डेज हम काम करते हैं, 8 कितना आवर्स है ना। और उसके बाद वीकेंड मिलता है, उसमें भी एक दिन ग्रोसरी में चला जाता है, संडे मिलता है उसके बाद। तो अगर अब रेशियो देखो उतनी निकलेगी ऑलमोस्ट, कि कितना काम करने के बाद हमें जो सो कॉल्ड, वो भी जो सो कॉल्ड एंजॉयमेंट है। तो हिरण्यकश्यप की जो एंजॉयमेंट का लेवल था वो अलग था, तो उसकी ऑस्टेरिटीज भी अलग थी, खैर। पर दिस इज द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, इतना सारा काम करने के बाद इतना सा मिलता है। एनी हाउ, तो उन्होंने उनको भी भक्त बनाया, और ही डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट कि अच्छा ये तो बड़े बड़े प्रहलाद महाराज हैं, उत्तानपाद का बेटा है ध्रुव, उसको करूंगा नहीं। उन्होंने वाल्मीकि वाल्मीकि को भी डिलीवर किया। वाल्मीकि कौन था? एक डाकू था, राइट। तो वो मारकाट करता था, उसके भी गुरु बने, और उसको भी बोला कि अच्छा तुम चैंट करो। कहते किसका नाम लूं मैं? कहता राम, उसे राम भी ना बोला जाए। इतने पाप किए हुए थे कि भगवान का नाम राम भी नहीं बोला जाता। और कृष्ण तो क्या बोल होना था उससे, राम बोलते हैं कि सबसे इजी नाम है राम। तो कृष्ण में तो जीभ ऊपर जाती है, प्री होता है, फिर षटकोण वाला होता है, फिर न होता है, न नहीं होता, राइट। तो कृष्ण तो बोलना ही बहुत मुश्किल है, तो राम भी नहीं बोल पा रहा था वो। उन्होंने कहा ऐसे कर, तुम मरा मरा बोल। तो मरा मरा बोल के वो मरा 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 करके वो राम राम बोलने लगा, और वो डिलीवर हो गया। राइट। तो एक डाकू से लेके मणिग्रीव नलकुबेर, उनको कैसे किया उन्होंने? टोटली इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है, पूरे नशे में धुत, वो गलत काम कर रहे थे, उनको भी उन्होंने डिलीवर किया। राइट, वो हमने दामोदर अष्टकम में हमने सब देखा हुआ है उसका, है ना। उनको भी किया। उनको तो छोड़ो, सांप को सांप को भी उन्होंने अपना शिष्य बनाया हुआ है। सांप बोलते हैं कि सबसे, शास्त्रों में भी है हमारे, कि सांप देखो तो उसको तुम मार सकते हो, बिकॉज ही इज द मोस्ट एनवियस। वो बोलते हैं, कहावत भी है ना, कि सांप को दूध पिलाना, राइट। तो वो कभी भी तुम्हारा सका नहीं होगा। सांप ऐसा ऐसा जानवर है, उस तक को डिलीवर किया हुआ है नारद मुनि ने, right? तो वो भी हमें स्टोरी पता है कि वो सांप था एक गांव में, तो सब लोग, वो सबको डसता था। तो फिर गांव वाले नारद मुनि जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा है, तुम भक्ति करो। और सांप भक्ति करने लग गया। उसको बोला ठीक है, ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तो फॉलो करोगे ही, और दूसरा या पांचवा ये है तुम्हारे लिए कि तुम किसी को काटोगे भी नहीं। वो मान गया। कैन इमेजिन, सांप भी भक्ति करने लग गया। उसके बाद फिर वो जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उसका तो बुरी हालत हो रखी है, तो खून से लथपथ है। तो उसने बोला कैसे हो गया ये? तो बोला कि मैं तो डस नहीं रहा था, मैं तो भक्ति कर रहा था, लोगों ने पत्थर मारा मेरे को, बच्चों ने, गांव के बच्चे पत्थर मार रहे थे मुझे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें डंक नहीं मारना, तो एटलीस्ट तुम मन तो दिखा सकते हो अपना। तो दिस इज हाउ बेसिकली ही डिलीवर्ड सो मेनी पीपल। ऑलराइट। तो दैट इज द नेचर ऑफ ए प्योर डिवोटी, ही वांट्स टू डिलीवर अदर्स, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी हमारे, तो यही एक नेचर है डिवोटी की, टू डिलीवर अदर्स, टू गिव कृष्णा कॉन्शियसनेस टू अदर्स। दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन गिव, राइट। नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी वो बोलते हैं, सकंद पुराण में आई थिंक, या नारदीय पुराण में, नारदीय पुराण में बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि मुझे जो प्रीचर है वो सबसे डियर मुझे प्रीचर है। व्हाई? बिकॉज ही इज गिविंग knowledge to others, and this is what we all are doing, right? We are all are giving Krishna consciousness to each other, right? सो एक बार शिला प्रभुपाद से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि प्रभुपाद एक बात बताओ हमें, हम कैसे अपनी कल्टीवेट करें डिजायर, वापस हम कैसे जा सकें, क्या करें हम ऐसा? तो प्रभुपाद ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस, आगे खुद खुद कृष्णा कॉन्शियस बनना है, और आगे कृष्णा कॉन्शियसनेस देंगे, रेस्ट एवरीथिंग यू रिमेन, यू लीव इट अप टू मी, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा, राइट। पर हमें इस बात में एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम दे रहे हैं किसी को, तो किसी ने राधा गोपीनाथ प्रभु का लेक्चर सुना था यहाँ पे जब आए थे वो,
डी सेलिब्रेशन में वेस्ट में, आई थिंक वो यूट्यूब पे आया नहीं लेक्चर, 20 मिनट है अभी, आई क्विकली टच अपॉन दैट। उन्होंने बहुत अच्छा ये लेक्चर दिया था, और उन्होंने बोला अब क्या होता है कि डिवोटी की नेचर है टू गिव, राइट, और एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि डिवोटी दे, है ना, जो उसने सीखा है वो आगे दे। अब क्या है, उन्होंने एक एग्जांपल दी ट्री की, बड़े अच्छी। उन्होंने बोला कि एक पेड़ जो है, पेड़ की एग्जांपल से उन्होंने समझाया, कहते पेड़ की जो जड़ें होती हैं, तो वो जितनी भी न्यूट्रिशन लेता है वो अपनी रूट्स से लेता है। न्यूट्रिशन जितनी जितनी जड़ें जो डीप होंगी, उतनी ज्यादा उतनी ज्यादा वो न्यूट्रिशन लेगा, राइट। तो वो जड़ें क्या हैं? भक्ति। वो जड़ें क्या हैं? कृष्णा। तो जितना आप कृष्णा से कनेक्टेड रहोगे, जितना डीप जाओगे, उतनी ज्यादा आपको न्यूट्रिशन मिलेगी, right? और जैसे पेड़ को न्यूट्रिशन मिलेगी, तो उसका जो जो स्टेम है, पेड़ के 3 पार्ट्स हैं, रूट्स, स्टेम एंड देन उसका जो ऊपर क्राउन है। तो कहते हैं जितनी आप डीप जाओगे, जितना कृष्णा के साथ कनेक्टेड रहोगे, उतनी आपकी स्टेम जो है वो नरिश्ड रहेगी, उतने आप मोटे रहोगे, उसको उतना तना जो है पेड़ का वो मोटा रहेगा। और जितना तना मोटा रहेगा, उसके बाद उस पे जो थर्ड पार्ट है पेड़ का, वो है पत्ते, फूल, फल। अब वो किसके लिए हैं? पत्ते, फूल, फल, ये सब चीजें किसके लिए हैं? पेड़ खुद तो खाता नहीं है, वो है फॉर अदर्स टू गिव, है ना। पेड़ के पत्ते दूसरों को छाया देने के लिए, फूल फल दूसरों के लिए, ताकि वो उसको खाए, पेड़ तो खाएगा नहीं। तो दिस बैलेंस इज वेरी नेसेसरी। हमें लगता है कि हम बस दूसरे को भक्त बना रहे हैं कैसे भी करके, ठीक है, दैट्स अ गुड इंटेंशन, राइट, बट एट द सेम टाइम वी शुड थिंक के वी आर नॉट द ओनली डूअर्स, राइट, कृष्णा भी है। एंड यू नीड टू ऑल्सो मेक श्योर कि दूसरों को देने देने के चक्कर में अपनी स्टेम, पता चले आप तो यहाँ तो बहुत डीप रूटेड हो आप कृष्णा से, ठीक है, पहला पहला काम क्या करना है? खुद डीप रूटेड होना है, देन ओनली यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू गिव समथिंग टू अदर्स। आप डीप रूटेड हो नहीं, ठीक है, और हम दूसरों को देने चले हैं, तो हमारा क्या होगा? वो जो स्टेम होगी वो ऐसे वीक होगी और हम खुद ही गिर जाएंगे। सो इसलिए फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज कि खुद यू हैव टू बी रियली वेरी वेरी गुड इन साधना एंड डीपली कनेक्टेड टू कृष्णा, सो दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, और फिर उसमें फल फूल भी अच्छे आएंगे, एंड देन यू कैन गिव टू अदर्स। एंड द अदर वे इज, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि तुम करे जा रहे हो, तुम करे जा रहे हो, तुम, और तुम्हारा तना भी बहुत मोटा है, पर उसके ऊपर कहते 2 पत्तियां लगी हुई हैं। मतलब तुम बोलेंगे कि यार कितना पानी पिला रहे हो, इतना कुछ किया, ऊपर सिर्फ 2 पत्तियां आई है तेरे, राइट। यू कैन नॉट गिव गिव टू अदर्स। जब तुम दूसरों को दे भी नहीं पाते हो, तो तब भी प्रॉब्लम है। सो दिस गिविंग एंड टेकिंग बोथ शुड गो हैंड इन हैंड, then you will be nourished more in bhakti. अभी आप देखो गौरा निताय आर लाइक स्टैंडिंग लाइक दिस, they are taking mercy and then they are giving as well, right? So that is the significance. All right, so तो हमने नेक्स्ट भी ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया है, राइट। सो 2 वर्सेस हो गए मतलब। हाँ, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, तो टेक्निकली था सारा। इसमें कोई क्वेश्चन अभी तक, कोई डाउट है तो वी कैन डिस्कस। तो प्रभु जी, ये जब एनालिसिस होता है तो ध्रुव लोक का होता है कि वो रह जाता है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन प्रभु। तो जैसे मैंने बताया, 4 तरह की एनहाइलेशन है। एक तो एलिमेंटल एनहाइलेशन है, जिसमें लोग मरते हैं, जीते हैं, ठीक है। दूसरा एनहाइलेशन है पार्शियल एनहाइलेशन। पार्शियल एनहाइलेशन में क्या होता है प्रभु? जैसे मैंने इसमें दिखाया था ना, ये, तो ध्रुव लोक जो है ना, अगर आप देखो, ये दिख रहा है आपको ध्रुव लोक? दिस इज ध्रुव लोक। सो ध्रुव लोक के जितने भी नीचे हैं, दे ऑल आर एनहाइलेटेड इन पार्शियल एनहाइलेशन। सो ध्रुव लोक में एनहाइलेट होता, ध्रुव लोक और ऊपर के लोक एनहाइलेट नहीं होते इन पार्शियल एनहाइलेशन। बट जब ब्रह्मा के 100 साल खत्म हो जाते हैं, ब्रह्मा के 100 साल कब खत्म होते हैं? जब महाविष्णु की एक ब्रेथ, एक एक सांस
अंदर हुई, इनहेल हुआ तो ब्रह्मा के 100 साल खत्म, तब ये पूरा पूरा अंडा ही अंदर चला जाता है। तो एट दैट टाइम एवरीथिंग फिनिशेस अप। बट यस, इन पार्शियल एनहाइलेशन दीज ऑल थिंग्स गो। हर रोज ये 100 ये हर ब्रह्मा के हर एक दिन में ये खत्म होते हैं। तो पार्शियल एनहाइलेशन 100 बार होती है ब्रह्मा के लाइफ टाइम में। तो पर ध्रुव लोक नहीं जाता तब। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? प्रभु प्रभु पार्शियल एनालिसिस 100 बार नहीं होती है, पार्शियल एनालिसिस 100 टाइम्स 100 years plus 360 टाइम्स बाय 365 टाइम्स होती है। 100 बार ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ब्रह्मा के एक एक अच्छा, हाँ नहीं ठीक कह रहे हो ना, 100 बार नहीं, सॉरी 33600 टाइम्स। हाँ हाँ, तो 100 बार नहीं, सॉरी आई वाज रॉन्ग। सो 100 साल जी रहे हैं, तो हाँ एवरी डे एनहाइलेशन होती है। हाँ 100 मल्टीप्लाई बाय 365 इज, हाँ, 3650 टाइम्स। तो उतनी बार एनहाइलेशन होती है, तो तब उन सब एनहाइलेशंस में ध्रुव लोक नहीं जाता है। ठीक है। कुछ ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उन्हें भी एनहाइलेशन होता है, तो उनकी एक रात होती है, उसमें भी होता होगा ना? नहीं, दिन जब दिन होता है तब तो ब्रह्मा क्रिएट करते हैं, सारी सृष्टि क्रिएट होती है, सब कुछ होता है, सब सृष्टि चलती है। जब ब्रह्मा सोने लगते हैं 12 घंटे बाद, तब सब कुछ खत्म हो जाता है, और ब्रह्मा जो है नारद मुनि और ऋषियों के साथ उनके अंदर चले जाते हैं, गर्भोदक के अंदर। तो रात को सोते हैं तो 12 घंटे तब कुछ नहीं हो रहा होता, डार्कनेस है, नथिंग हैपन्स। फिर नेक्स्ट डे होता है, फिर से दोबारा वो सब कुछ वापस से स्टार्ट होता है। ठीक है। 31 चलते हैं, आई थिंक हो जाएगा कवर। अंतर्बहिश्च लोकम त्रिन पर्येमि स्कंदिता व्रतः अनुरागन् महाविष्णुर्अवगता गति क्वचित्। Since then, by the grace of the Almighty Vishnu, I travel everywhere without restriction, both in the transcendental world and in the three divisions of the material world. This is because I am fixed in unbroken devotional service of the Lord. Anyone wants to read the purport? I can read. As stated in the Bhagavad Gita, there are three divisions of the material spheres, namely the Urdhva-loka, Madhya-loka, and Adho-loka. Beyond the Urdhva-loka planets, this is to say, above the Brahma-loka, are the material coverings of the universes, and above that is the spiritual sky, which is unlimited in expansion, containing unlimited self-illuminated Vaikuntha planets inhabited by God Himself, along with His associates, who are all eternally liberated living entities. Sri Narad Muni could enter all these planets in both the material and spiritual spheres without restriction, as much as the Almighty Lord is free to move personally in any part of His creation. In the material world, the living beings are influenced by the three material modes of nature, namely goodness, passion, and ignorance. But Sri Narad Muni is transcendental to all these material modes, and thus he can travel everywhere unrestricted. He is a liberated spaceman. The causeless mercy of Lord Vishnu is unparalleled, and such mercy is perceived by the devotees only by the grace of the Lord. Therefore, the devotees never fall down, but the materialists, that is, the fruitive workers and the speculative philosophers, do fall down, being forced by their respective modes of nature. The rishis, as above mentioned, cannot enter into the transcendental world like Narad. This fact is disclosed in the Narsimha Puran. Rishis like Marichi are authorities in fruitive work, and rishis like Sanaka and Sanatan are authorities in philosophical speculations.
But Sri Narad Muni is the prime authority for transcendental devotional service of the Lord. All the great authorities in the devotional service of the Lord follow in the footsteps of Narad Muni in order of the Narad Bhakti Sutra, and therefore all the devotees of the Lord are unhesitatingly qualified to enter into the kingdom of God, Vaikuntha. Hare Krishna. राइट, तो ये हम सबने ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस कर लिया था, राइट, कि जो मारीची और जो थे वो क्या थे, फ्रूटिव वर्ग के, तो कर्म कांड करते थे वो, और सनक सनातन क्या थे, वो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन करते थे। तो ऑल दे कैन रीच इज मैक्सिमम इज ब्रह्म ज्योति, बट नॉट इनटू द वैकुंठा प्लैनेट। तो कोई भी वैकुंठा प्लैनेट तक कोई नहीं जा सकता था एक्सेप्ट नारद मुनि, राइट, ब्रह्मा के इतने पुत्रों में से, ठीक है। तो ही वाज द ओनली वन हु कैन डू दैट, एंड व्हाई ही वाज एबल टू डू दैट। अब देखो इसमें, अगर आप ध्यान से वर्स देखो, कितना अच्छे से उन्होंने बोला है, बाय द ग्रेस ऑफ द ऑल माइटी विष्णु, भगवान की ग्रेस से, विष्णु की ग्रेस से आई कैन ट्रेवल एवरीवेयर, ठीक है। एक तो हो गई ग्रेस, अब साथ में वो भी बोल रहे हैं कि भाई ऐसा मत सोचना कि खाली ग्रेस ग्रेस ही है, मैंने भी कुछ किया है। क्या किया है? बिकॉज आई एम फिक्स्ड, दिस इज बिकॉज, ये ऐसा क्यों हुआ, वो ग्रेस क्यों आई मुझ पे, बिकॉज आई एम फिक्स्ड इन द अनब्रोकन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। सो इट्स द टू थिंग्स, हमने कई बार ये डिस्कस किया है ना, ये चीजें दामोदर लीला में भी हमने देखा, एंडेवर, योर ओन एंडेवर, दूसरा इज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो हम खाली ये नहीं कह सकते कि जी भगवान की मर्सी है, भगवान की मर्सी जब होगी हम खुद बैठे रहे हाथ पे हाथ धर के और बोले हाँ भाई, वो जैसे बोलते हैं ना, हम नॉर्थ में तो बोलते हैं, हमारे पंजाब में बोलते हैं हाँ भाई माता की चिट्ठी आएगी तब हम जाएंगे। भाई माता की चिट्ठी तो आएगी, तुम भी तो कुछ करो, तुम्हें भी तो कुछ करना है, खाली चिट्ठी नहीं आएगी, ठीक है। दोनों तरफ से खुद का एंडेवर एंड एज वेल एज भगवान की मर्सी, बोथ गो हैंड इन हैंड। और खुद का एंडेवर क्या है, अब हम बोल देते हैं ना कई बार कि कोई बहुत अच्छा डिवोटी होता है, अरे उस पर तो भगवान की कृपा है, ठीक है। सो अब शिला प्रभुपाद को बोल रहे हैं, अरे शिला प्रभुपाद की क्या बात है, वो तो एम्पावर्ड डिवोटी है, उनका क्या है, उनसे क्या कंपैरिजन है। नो डाउट ही वाज एम्पावर्ड, शक्ति वेश अवतार, ही वाज अ शक्ति वेश अवतार, राइट, बट लुक एट हिज लाइफ। हम सबने लीलामृत ऑलमोस्ट सबने पढ़ी है, कितनी स्ट्रगल, कभी उनका ऐसा नहीं था कि एवरीथिंग वाज क्लियर टू हिम। जब वहां अमेरिका पहुंचे उनको ये नहीं पता था मुझे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, दिस वाज हिज स्टेट, बट व्हाट वाज ड्राइविंग हिम, फेथ इन कृष्णा, फिक्स्ड अनब्रोकन डिवोशनल सर्विस, सो ही वाज फिक्स्ड देयर, राइट। तो हमारा केस में क्या होता है, हम दो एक्सट्रीम्स में होते हैं। यहाँ तो हम बोलते हैं कि आई एम द डूअर, यही बोलते हैं ना हम, वो क्या बोलते हैं, प्रभु वर्स बोल देते हैं, कर्ता अहम इति मन्यते, हाँ, भगवत गीता में बोलते हैं ना कि जो विमूढ़ आत्मा क्या बोलती है, कर्ता अहम इति मन्यते, आई एम द डूअर। यहाँ तो हम ऐसे बोलते हैं, यहाँ हम दूसरे एक्सट्रीम पे होते हैं कि जो भी करेगा भगवान करेगा, उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलेगा, दैट इज फाइन, बट यू ऑल्सो हैव टू डू समथिंग, बोथ बोथ गो हैंड इन हैंड, राइट। हम अब ये अनब्रोकन डिवोशनल सर्विस अगर मैं इसको अपने पे अप्लाई करूं, मेरी तो अनब्रोकन क्या है, मतलब सुबह चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग में एक तो होती है ना कि चैंटिंग कर रहे हैं और उसमें ब्रेक आ रही है कि कोई थॉट कहीं जा रहा है, कुछ जा रहा है। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं जब चैंटिंग करता हूँ तो मैं ब्रेक ही होती है सारी, उसके अंदर बीच में थोड़ा थोड़ा स्मरण आ रहा होता है, ब्रेक के अंदर चैंटिंग होती है, ना कि चैंटिंग में ब्रेक हो रही होती है, राइट। तो ये तो लेवल है हमारा डिवोशनल सर्विस का। So अगर if we are unbroken in devotional service, we can also travel anywhere. We can quickly, immediately get out of this world and travel anywhere we want to. Alright. तो consistency that is very important. तो जो यहाँ पे जो point आ रहा है कि we have to be very very consistent. अब मैं जिम जाता हूँ, तो अगर मैं जिम 2 हफ्ते ना जाऊँ, अभी 2 हफ्ते मेंटेनेंस चल रही थी जिम में, तो मैं नहीं गया, उसके बाद मैं जिम जाऊँ, मेरे से हो ही नहीं रही एक्सरसाइज, तो we come back to square one. तो तभी बोलते हैं नित्यम भागवत सेवा, डेली डेली वी हैव टू रिचार्ज अस। अगर मैं खाना बनाऊंगा, कुछ खाना बनाना है मेरे को, मैंने गैस पे रखा 2 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी, फिर मैं गया थोड़ी देर बाद, फिर मैंने गैस ऑन कर दी आधे घंटे बाद,
फिर मैंने 5 मिनट बाद गैस बंद कर दी, फिर कर दी, तो सब्जी कभी पकेगी नहीं। तो वही केस मेरे साथ हो रहा है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कर लिया, बीच में छोड़ दिया, बीच में कर लिया, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो ना माया मिली ना राम। ये भी छोड़ा, इतना कुछ बंदा का यार, इतना कुछ छोड़ा भी, भक्ति भी करी, और कुछ मिल भी नहीं रहा आगे। राइट, सो द रीजन इज दैट वी आर ब्रोकन इन आवर डिवोशनल सर्विस। डेली डेली वी शुड मेक श्योर कि कुछ ना कुछ हम सुने, कुछ ना कुछ हम करें। राइट, तो अगर ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। राइट, तो उद्धव उद्धव गया गोपियों के पास। तो उद्धव ने बोला कि जब वो वृंदावन छोड़ गए थे, राइट, तो मथुरा से उद्धव को भेजा उन्होंने। तो उद्धव ने बोला गोपियों को कि यार आप ऐसा करो, आप थोड़ा भगवान का ध्यान करो, आपका जो ये जो विरह है, ये जो आप रो रहे हो कृष्णा के बिना, तुम ठीक हो। तो वो बोल रही है प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कृष्णा को याद नहीं कर पा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम उल्टी है, हम कृष्णा को भूल ही नहीं पा रहे हैं। राइट, सो देयर डिवोशनल सर्विस वाज अनब्रोकन। राइट, तो हम तो जो पढ़ते हैं, अब जैसे अब हमारा एग्जाम है, भक्ति वैभव का एग्जाम है या भक्ति शास्त्री का एग्जाम है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अगर वो डंडा ना हो तो मैं तो कभी ना पढूं, या क्लास देनी हो तो उसके लिए पढ़ते हैं। तो वो मतलब कभी ठंडी कभी गर्म ऐसा है। तो दैट शुड नॉट बी द केस, डेली कुछ ना कुछ हमें, वी शुड डू दैट। राइट, और थोड़ी सी भी अगर हमें प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली चीज क्या छूटती है, भक्ति छूटती है। राइट, थोड़ा सा खांसी जुकाम हुआ, थोड़ा सा बुखार हुआ, तो सबसे पहले क्या होगा, भक्ति छूट जाएगी। तो या आई थिंक दैट्स इट, we'll stop here and we'll see if we have any comments or questions. So मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सो की लेसन हमने क्या देखे इसमें, कि डिवोटी जो होता है वो ऑलवेज हेल्प अदर्स। राइट, ऑलवेज थिंक ऑफ अदर्स, बट प्रोवाइडेड, वो ट्री वाली एग्जांपल याद रख के, ठीक है, कि फर्स्ट वी हैव टू बी गुड इनफ बिफोर वी स्टार्ट गिविंग इट टू अदर्स। राइट, सो वी हैव सीन दैट नारद मुनि वाज सो कंपैशनेट, एक सांप से लेके ध्रुव महाराज तक को उन्होंने भक्ति दी। राइट, ही डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। सो सेम वे वी शुड ऑल्सो नॉट डिस्क्रिमिनेट कि यार अच्छा ये अमीर है, या ये मोर ऑप्युलेंट है, या इसका ज्यादा फेम है तो मैं इसको देता हूँ, और ये गरीब है या वो है तो मैं इसको नहीं दूंगा। नो, अवर बिहेवियर शुड बी सेम विद एवरीवन। भक्ति इज फॉर ऑल, इज फॉर एवरीवन। राइट, और हमने देखा था कि प्योर डिवोशनल सर्विस है वो क्या है, ज्ञान कर्मा अनावृतम। वो ज्ञान मार्ग और कर्म कर्म योगा के मार्ग से हम कभी भी वैकुंठा या भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतने सारे ऋषि मुनि, इतने सारे ऋषि मुनि, वो भी ये ज्ञान मार्ग या कर्म योगा के मार्ग पे हैं, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। द लास्ट वन इज द अनब्रेकेबल डिवोशनल सर्विस। तो अगर हमने जो भक्ति की जो आग लगाई है, उसमें हम पानी डालते रहेंगे, उसको ब्रेक करते रहेंगे, तो वो जो भक्ति है हमारी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमें जो भक्ति लता, जो हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं, हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भक्ति वृक्षा में कर रहे हैं सर्विसेज, और टेम्पल में सर्विसेज कर रहे हैं, इतनी सारी सर्विसेज करने के बाद अगर हमने अपनी भक्ति लता को प्रोटेक्ट नहीं किया, सो देयर इज नो यूज। राइट, सो दैट शुड नॉट बी ब्रोकन, इट शुड बी अनब्रोकन डिवोशनल सर्विस। राइट, सो दीज आर द की पॉइंट्स। श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी भक्तवृंद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? Prabhu, I had one request, if I may make. Yes, yes, please. So I'm on Fridays I attend Bhakti Vriksha in Oakley South, and there are two devotees that are interested in Bhagavatam classes. I don't know how much they've read or how much deeper they are into Bhagavatam, but they were very much interested. One of them is actually reading Chaitanya Charitamrita as well, and she's preparing for her exams. Yeah. So she was asking me if she could join our classes as well, because she's studying it by herself right now. Yeah, I think, so is it okay if I invite her as well? Yes, yes, definitely. Vishnu Preshwar Prabhu ने दिखाया उस पे, कहते you can do that, not a problem. It's anywhere, you can, it's good.
बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले आओ किसी को आज भी। का क्या कहते हैं, आज का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रही हूँ मैं आज के लिए। हाँ प्रैक्टिकल, रियली रियली इट्स गुड, इट्स गुड। सो हमें देखो फायदा हुआ है तो क्यों ना सबको फायदा हो, राइट। और भागवतम तो वैसे ही सो प्यूरिफाइंग, तो राइट प्रभु है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम है ना, यू कैन इनवाइट, Prabhuji, are you okay for me to send the invitation to other students? डेफिनेटली, तो बहुत ही अच्छी बात है, इट्स अमेजिंग। प्लीज ये पीछे भागवतम को ना हम लोग जितने लोगों तक पहुंचाएंगे उतना अच्छा है। और एक नाउ सेकंड। अब सारे यहीं पर ही हैं, तो एक और चीज मेरे को पूछनी थी कि आर यू ओके विद द पेस, और इज इट टू स्लो और इज इट टू फास्ट, तो वी कैन चेंज It's अकॉर्डिंगली। perfect for, आज yeah, it's हाउ से, perfect for me, Prabhu. हाँ ओके ना, ओके। बता देना अगर स्लो लगे या फास्ट लगे, सो विल ट्राई टू कवर थ्री थ्री टू टू थ्री थ्री वर्सेस, हम ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको लगती है कि स्पीड स्लो है तो। प्रभु जी खत्म होगा। तभी मैं बोल रहा था, अब तो हफ्ते में 2 दिन कर रहे हैं प्रभु और टारगेट कर रहे हैं कि 2-3 वर्सेस हो जाए, तो होपफुली खत्म तो नहीं होगा, खत्म होना भी नहीं चाहिए ना, मजा आता रहना चाहिए, नेक्टर है Exactly. आता Let's रहना चाहिए। focus on the journey rather than destination. हाँ और क्या, आफ्टर फिर 30 जब इयर्स खत्म हो ऐसे गया बैठे तो हुए पता नहीं हैं। अब क्या करेंगे, बहुत बड़ा वॉइड हो जाता है प्रभु। प्रभु ये ना खत्म होने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि ये ना ये कभी नहीं खत्म होने वाली चीज है। मैं ऐसे बोल हजारों रहा हूँ कि करोड़ों जन्मों से चल रही है, अभी चलती रहेगी। 30 साल के बाद भी ऐसे ही बैठे होंगे। प्रहलाद महाराज ने 10,000 साल तक सुनी थी, देखो हम तो प्रहलाद महाराज भी नहीं है, वो तो डायरेक्ट नारद मुनि से सुनी थी हमने तो पता नहीं कहाँ से आके हमें तो सुन रहे हैं, राइट। तो हमें तो पता नहीं कितने कितने हजार साल लगेंगे, और वो भी जब वो गर्भ में थे, जब कुछ ये कंडीशनिंग नहीं होती, राइट, बच्चे में इतनी कंडीशनिंग नहीं होती, लेकिन हमारी तो प्रभु कंडीशनिंग थी सारा। ये जो भाव है ना कि हमें सुननी है, ये भी ना बहुत बड़ी सुकृति से ही मिलता है ना। हमारा एंडेवर तो खैर है ही, लेकिन अगर हम लोग को सुकृति नहीं होगी ना तो हम लोगों को नहीं मिलेगा ना। हर हफ्ते में 2 बार आके भागवतम सुनना हर किसी के बस की बात भी नहीं है, और हर किसी के पास इतनी सुकृति भी नहीं है। लेकिन नहीं अगर है, ये अच्छी बात क्या है इसमें कि वी कैन मेक आवर ओन सुकृति। अगर हम लोग अपना एंडेवर करें ना, एंड इफ वी प्रे, तो हम लोग वी कैन क्रिएट दिस सुकृति। लेकिन यही है कि, और तभी प्रभु बोल रहे थे ना कि इट हैज टू बी नित्यम भागवत से भी आया। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया एंड देन नेक्स्ट टाइम किसी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ के पकड़ा दिया तो पढ़ लिया, तो उसमें क्या होगा कि भक्ति में ना वो नहीं आएगी, स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो उसके लिए यू हैव टू डू इट एवरी सिंगल डे, लाइक लिटरली क्या बोलते हैं उसको, किसी भी हालत में कुछ भी करके, कैसे भी करके, एवरी डे 5 मिनट भी पढ़ो, बट पढ़ो एंड अटेंड दीज क्लासेस, मेक दैट दीज क्लासेस अ प्रायोरिटी। तो क्या होगा, मर्सी विल फ्लो। जैसे अभी नारद मुनि बोल रहे थे ना, बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड मर्सी विल फ्लो, है ना, मर्सी विल डेफिनेटली फ्लो। बट बहुत ही बढ़िया क्लास प्रभु, आई एम वेरी वेरी, it was very insightful and very lovely. Thank you Prabhu, very very happy. तो हम ऐसा भी, I feel energized for my अरे chanting प्रभु, tomorrow now. अरे प्रभु Thank you. तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे प्रभु ने कहा कि हम पढ़ सकते हैं, तो अगर हम पढ़ के आएंगे तो हमारे पास और क्वेश्चंस भी होंगे, सो वी कैन आस्क मोर क्वेश्चंस मे बी, I अगर agree. कोर्स पढ़ के I आएंगे agree. तो वी कैन गो एट अ फास्टर पेस, आई मीन इफ यू वांट। होमवर्क दिया करो प्रभु जी। हाँ, या हम क्विज भी कर सकते हैं वीकली। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। अभी आपने जो क्लास में मेंशन किया लास्ट में कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, हम भक्ति रिक्शा में सर्विस कर रहे हैं और हम टेम्पल जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमें अपना भक्ति लता बीज प्रोटेक्ट करना है ना, आपने ऐसे बोला। तो प्रभु हम ये सब कर रहे हैं तो उससे ही तो भक्ति लता बीज प्रोटेक्ट हो रहे हैं, मतलब ऑल दीज एक्टिविटीज आर हेल्पिंग आवर टू प्रोटेक्ट आवर भक्ति लता बीज, और इज दिस डिफर फ्रॉम इट? ना एग्जैक्टली, बट अगर अगर आपने सुना हो तो कि जो ट्री की एग्जांपल उन्होंने दिया ना, कि अगर हम खुद ही सेल्फ डीप रूटेड नहीं होंगे कृष्णा के साथ,
and we try to give it to others, so what can happen is कि हमारा वो पेड़ का तना इतना मजबूत नहीं है और हमारे गिरने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा क्या है कि वो ब्रोकन डिवोशनल सर्विस है, और अगर हमारी बीच में वैष्णव अपराध हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उनसे वो निकलती रहती है, लीक आउट होती रहती है। सो ऑल वी हैव टू डू इज नो ऑफेंसेस, स्ट्रिक्टली नो ऑफेंसेस। हमें लगता है कि हम भक्त बनाने जा रहे हैं, बट उस चक्कर में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अवजानंती मामू मूढ़ा भगवान बोलते हैं ना, और वो एक ऑफेंस भी है, वन ऑफ द 10 ऑफेंसेस में है ना, डू नॉट इंस्ट्रक्ट अ फेथलेस पर्सन। सो व्हेन वी ट्राई टू इंस्ट्रक्ट अ फेथलेस पर्सन, हम अपनी तरफ से अच्छा करने जा रहे हैं, बट वो क्या हो रहा है, नाम अपराध हो रहा है, विच इज अ वेरी वेरी प्रभु सीरियस ऑफेंस। नहीं प्रभु, मेरा फिर इसमें डाउट है, मुझे लग रहा है कि मुझे कंफ्यूजन हुआ है। आप ये जो एक्टिविटीज बता रहे हो वो प्रीचिंग के पर्पज से बता रहे थे, मैं साधना के पर्पज से बता रही थी। आई वाज काउंटिंग इट इन द साधना। हाँ, सी प्रीचिंग इज एवरीथिंग, एवरीवन इज अ प्रीचर। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे जो सीट पे अभ्यास आसन के बोल रहा है वो प्रीचर है। सेवा, सदाचार और साधना, तो जो सदाचार है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रीचिंग। ठीक है, तो सदाचार अगर हमारा अच्छा होगा तो फ्रॉम दैट वी कैन मेक अ भक्ता। बट सो प्रीचिंग इज नॉट कि एक बंदा जो बोल रहा है वो वाला प्रीचर है। प्रीचिंग हम सब कर रहे हैं, जैसे हम मैंने बोला ना कि वो सर्विस कर रहे हैं, हम भक्ति शिक्षा में सर्विस कर रहे हैं, और जगह सर्विसेज कर रहे हैं, हमें कोई मिलता है हम उसको थोड़ा सा ज्ञान दे रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो प्रीचिंग। और तो साधना मतलब में तो आपने जो टेम्पल जाने का बोला वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला प्रभु, वो नहीं मुझे समझ में आया। मतलब अगर हम टेम्पल जा रहे हैं या फिर हम डिवोशनल सर्विसेज अटेंड कर रहे हैं तो उससे तो हमारा भक्ति हाँ दैट लता इज, भी हाँ दैट स्ट्रांग इज, हाँ हाँ दैट इज, स्ट्रांग होगा। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने उस पॉइंट से बोला था कि ये सारी चीजें करके हम अनब्रेकेबल डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन हम टेंपल चले गए, जिस दिन टेंपल नहीं गए तो उस दिन हमने कुछ और कर लिया, तो वो डिवोशनल सर्विस में ब्रेक नहीं आना चाहिए, वो डेली हमें कुछ ना अच्छा, कुछ डिवोशनल सर्विस करते रहना चाहिए, ठीक है प्रभु, है ना, टू जस्ट मेक क्लियर अ। प्रभु। हाँ, मुझे कंफ्यूजन हुआ था क्योंकि आपने दोनों लाइन सेम उसमें बोली हाँ ना, तो हो मुझे सकता लगा है। आप उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो कि मतलब वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग बट एट द सेम टाइम वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर भक्ति लता भी। तो मुझे वो हाँ लगा कि हाँ हाँ, वो नहीं मुझे नहीं नहीं, वो इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतनी एफर्ट कर रहे हैं, और उस एफर्ट को हम थोड़ा सा पानी उस पे ना डाल दें बाय डूइंग वैष्णव अपराध और बाय डूइंग एनी ऑफ द 10 ऑफेंसेस, राइट, जो हम सुबह पढ़ते हैं। सो दैट इज द पॉइंट। थैंक यू प्रभु। बाकी विष्णु प्रेष्ठ प्रभु, आप कुछ ऐड करना चाहोगे माता जी के क्वेश्चन पे? नहीं माता, आई थिंक आपने जो भी लास्ट बोला ना उससे क्लियर हो गया कौन का। आई थिंक इट्स वो दो डिफरेंट थिंग्स थी, तो नथिंग फ्रॉम माय साइड प्रभु। वेरी नाइस, आई लव्ड इट। एंड आई लव कि पार्टिसिपेशन इतना अच्छा है ना सब लोगों का, है ना, यू कैन सी दैट पीपल आर एंगेज्ड। और यही है ना कि जब हम लोग कुछ क्लासेस वगैरह देते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, तो थोड़ा सा अंदर से लगता है कि हाँ यार, कुछ हम लोगों ने कुछ वैल्यू ऐड करी। ऑब्वियसली वी कांट डू एनी वैल्यू ऐड बिकॉज कृष्णा इज डूइंग ऑल द वैल्यू ऐड, लेकिन फिर भी इट गिव्स अस दैट काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट वी आर एबल टू सर्व। सो पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। थैंक यू, आप लोग इतना पार्टिसिपेट करते हो तो हम लोगों को भी काफी इंकरेजमेंट मिलता है। राइट, ऑल राइट, चलो, प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।